welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today for this session we are going to deal with the topic reproduction in plants, and for that we are going to solve some Selena questions, the review questions. So basically this is a long topic in your class 8 ICSE book, the chapter reproduction in plants and animals, and that is why I thought that practice questions are really necessary in the ICSE series for this particular topic, as well as for the next topic also the practice questions are going to come, that is reproduction in animals. Okay. So basically the thing that we are going to deal with in this session are some exemplar type questions of Selena book, your ICSE book, and then some additional questions as well. So stay till the end of the session to know more. Now let's begin with the MCQs first of all. So pollen is produced in the anther. What is anther? Anther is in the stamen. Stamen are the male reproductive part. उनके अंदर होते हैं दो चीजें, anther and filaments. उनके पास anther. Anther में क्या pollen grains are produced. In anther the pollen grains are produced. B. Reproductive walls of a flower are stamens and carpels. Why is it so? Because stamens are the male reproductive parts while carpels are the female reproductive parts. So they are the reproductive walls of a flower. Now grafting is a method of artificial vegetative propagation. In artificial vegetative propagation there were many methods like cutting, grafting, layering and tissue culture as well. So in one of them is artificial vegetative propagation, while sexual reproduction, it is it's a type of natural reproduction only, while artificial pollination you haven't heard it yet in your ICSE, while cross pollination is a pollination which occurs in a cross. मतलब यार जो pollens है वो इस फ्लावर से उस फ्लावर तक ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब सेम फ्लावर में नहीं हो रहे हैं, दूसरे फ्लावर में हो रहे हैं. वो आपने मतलब मेरा सेशन देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा. Which one of the following is a false fruit? False fruit. So which one of the following is known as a false fruit? So it's like apple. Now short answer questions. Now let us deal with the short answer question, easy to answer वाले questions है. First question is that write two ways in which pollination may occur in plants. So in plants pollination may occur in two ways, and they are self-pollination and cross-pollination. Simple. This was the simplest question you have ever answered, isn't it? Absolutely yes, guys. This was the simplest question. And if you want to know more detail about these two types of pollination, then you can actually watch my video. Okay. Now second question is, name the three agents of pollination. What are the three agents of pollination? They are insects, wind and water. Insects means उनको क्या होता है, insects को plants attract through the nectars और वो pollination कर रहे होते हैं. Wind is actually doing that and water is actually doing that. Now give two features of flowers which favor pollination by insects. Which are those two features of flowers which favor pollination by insects? As I have told you guys, they have nectar first of all. So what is that? That first thing is that they have nectar which attract insects. They have nectars which attract insects. Now having nectars, they look like they are having colorful petals which attract insects. They have beautiful smell which attract insects. So these are the things that make pollination possible by of plants by insects. Name two characteristics of flower in which pollination occurs by wind. Now what are those characteristics of flowers? Basically they are that the pollen grains are very light, they are light. Secondly, they produce a large quantity of pollen. If they will produce a small quantity of pollen, maybe like that will be, अच्छा ठीक है, यहाँ देख लो. If like only small quantity of pollens will be produced, then you know what is going to happen. Only like if they are producing only 3 pollens, then what is going to happen? Out of those 3 pollens, only 1 pollen is going to like grow in a plant, or maybe possibly that none of them grows into a plant. Why is it so? Because यार जब वो wind के through है ना fly करेगा, they are basically wind, they are having wings that makes them really fly easily. तो जब वो उड़ेगा wind की जो वजह से when it is going to fly, then what is going to happen? आधे इधर गिरे, आधे उधर गिरे, आधे उधर गिरे. अब यार अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक pollen फेवरेबल कंडीशन में ही गिरता है, मे बी कोई वेस्ट भी हो जाए. इसीलिए अगर वो लोग ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होने वाला है? अगर थोड़े ही प्रोड्यूस करेंगे तो मे बी पॉसिबली कि थोड़े प्रोड्यूस करें और कुछ भी नहीं हुआ, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, 100 पॉलेंस प्रोड्यूस किए तो 100 में से एटलीस्ट 50 या फिर 50 नहीं तो एटलीस्ट 20 तो प्रोड्यूस होंगे ना.
तो ये होता है. What is a false fruit? Give an example. So false fruit is nothing but your apple. Apple हम लोगों ने अभी देखा था. In false fruit, the base of flowers becomes the main fleshy part of the fruit, while the ovary remains a small central part containing seeds. For example, apple and pear. Now, question number 6 is name any 3 agencies for dispersal of seeds. Name any 3 agencies for dispersal of seeds? Yes, this is what they are asking. So, in reproduction in plants, you have learned the very last topic, that was seed dispersal, and here is the question related to it asked. So, let's answer this. So, these are wind, water, and man and animals. Of course, you in short you can write all this as animals. ठीक है, इन सबको शॉर्ट में कैसे लिखना है आपको? Into animals, क्योंकि we animals also help in seed dispersal a lot, and I have explained these all the points in detail in my session as well. Now guys, moving on to fill in the blanks by selecting suitable words. We have to select the suitable words and fill in the blanks. First question is, a flower that bears both the male and female reproductive parts are known as bisexual flowers. Why are they known as bisexual flowers? First of all, because they have stamens and pistils both. They are having stamens and carpels, basically stamens and carpels both. What are carpels? Female reproductive parts. What are stamens? Male reproductive parts. Means they are having both female as well as male reproductive parts, and they are going to be known as bisexual flowers. While a flower that is having only either a male reproductive part, carpel, male reproductive part, stamen, or the female reproductive part, that is carpel, they are going to be known as unisexual flowers. They are going to be known as unisexual flowers, guys. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma is known as pollination. This is basically the entire definition of pollination that you need to remember. Fusion of male cell with the female cell is called fertilization. When male gametes fuse with the female gametes, or male germ cells fuse with the female germ cells, that is going to be known as fertilization. The ovule develops into a seed after then. It basically it gets covered into a tough coat and then gets transformed into a seed, the ovule. The ovary of the flower develops into a fruit, and then in the flower there will be ovary, and then what is going to happen to that ovary? That is going to develop into fruit. Now there are some long answer questions because these type of questions were very short. Now let's look at some of the long answer questions that you need to learn for your examinations as well as for giving knowledge. Question number 1, what is vegetative propagation? Vegetative reproduction. So basically in short I'm going to explain it, while in examination you can write in this format. So in vegetative reproduction, the vegetative parts of the plants are used to make new plants or produce new plants, basically, or used to produce new plants. Which are the vegetative parts of the plants? Guys, look at flower. Flower are the reproductive parts of the plants. Flowers are known as the reproductive parts of the plant. When it comes to vegetative part, then that are stems, roots. Okay, there are stems, roots, then also leaves. These are all your vegetative parts. So basically there are 2 types of vegetative propagation: natural and unnatural. Unnatural, disnatural. Basically wrong English, it is artificial. Okay. In this method, new plants are produced by the vegetative parts of the plant. The vegetative parts are these 3. The potato, mint, ginger, banana, etc. are produced by this method. In potato, what happens? That आपका जो sweet potato होता है वो it happens through stems and potatoes from roots, mints, then ginger, then bananas that use tissue culture. Bananas basically use tissue culture, and when it comes to your gingers, so gingers are basically using like their by stems. Okay, sweet potatoes by your roots, and then potatoes by stems, and etc. Now vegetative propagation can occur by natural methods as well as artificial methods that I have already told. Artificial methods include cutting, layering, grafting, and as well as the very important tissue culture. What is the very important one here? It is tissue culture. Tissue culture. So basically we are going to highlight the important parts of the question here. Question number 2. Briefly explain why a gardener prefers to grow certain plants varietily. Why is it so? So gardener prefers to grow certain plants by vegetative propagation
The advantages is doing so are as follows. In simple, you have to write that the gardener prefers to grow certain plants by vegetative propagation because it has many advantages as follows. Now advantages are given here. Reproduction by vegetative parts take a shorter time, मतलब they bear fruits earlier than the plants grown naturally, मतलब normally जो grow होते हैं उससे ज़्यादा जल्दी they bear fruits. New plants thus produced spread very fast in small area. It is a surer method. You're very sure about that method, as well as all the desirable characters of the parent plant is going to go in the daughter plants as well. Okay, now question number 3, why is it disadvantageous? Yeah, there are many disadvantages as well of vegetative propagation. If something has advantages, then that is surely going to have disadvantages as well. Now let's deal with some disadvantages that it has. First of all, as all plants developed by vegetative propagation are identical, they are likely to be affected simultaneously if a disease spreads in the farm. Okay, also I have been explaining this point in my session. Second is dispersal of plants does not take place on its own. Daughter plants so developed tend to remain nearby and are restricted to a particular area, लीडिंग टू कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज. मीन्स एक एरिया जहाँ मदर प्लांट है वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स होंगे. अब क्या होने वाला है? द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, नथिंग एल्स. एंड लिटरली कॉम्पिटिशन इज नॉट रियली हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स बिकॉज that can decrease the yield of the plants as well. And in vegetative propagation, the undesirable characters of the plants can also enter into the daughter plants. That is not good for us, neither for plants, but yeah, that is going to happen itself because they are going to be totally identical. Now guys, what is meant by pollination? What is pollination? Explain the structure of germinating pollen grain with the help of a label diagram. So look at pollination. Pollination is the process in which the pollen grains from the anthers are transferred to stigma. They are going to be transferred to stigma. This definition we have learned like thousands of time and you need to remember it. Now how is its structure? Just look at the structure here. मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ साइड में, आप ये वाला रेफर कर लो, ठीक है, आप ये रेफर कर लो, मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करती हूँ. What is actually happening is, ये देखो, आपका प्लांट के बीच में ये पार्ट होगा, ठीक है. आई एम ड्रॉइंग इट विद माई माउस सिंस इट्स नॉट गुड बिकॉज आई एम ड्रॉइंग इट विद माई माउस सिंस आई हैव नो पेन टैब. नाउ गाइस, यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपका यहाँ पे ये जो ऊपर पार्ट है वहाँ पे आएगा आपका स्टिग्मा. What will come here guys? It is the stigma is going to come here. Then उसके बाद आता है आपका स्टिग्मा के बाद what is going to come here? Your style. After style, here will be some more structures. They are known as ovaries. ठीक है, और एकदम अंदर आपके होते हैं ovules. ठीक है, ओवरीज देन ओव्यूल्स होते हैं, मतलब अंदर एकदम नहीं, ऑब्वियसली लाइक देखो ये बाहर का जो पोर्शन है वो ओवरी और फिर ये जो पोर्शन है वो क्या होगा आपका ओव्यूल्स हो जाएंगे. एंड ये सारे आते हैं आपके किस में? पिस्टल्स में. ठीक है, ये आपके पिस्टल्स में आता है. अब यार यहाँ पे जो ये ट्यूब यहाँ पे होता है, यहाँ पे ना एक ट्यूब्स भी होते हैं, रुको मैं ड्रॉ कर देती हूँ फ्रॉम यूजिंग द ब्लैक पेन. यहाँ पे कुछ ट्यूब्स भी होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पोलन ट्यूब्स. इनको बोलते हैं पोलन ट्यूब्स. विद दैट पोलन ट्यूब्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ और पोर्शंस भी होंगे जैसे एंथर्स एंड फाइलामेंट्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी देयर वो बाहर. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोलन ट्यूब्स की मदद से क्या होंगे आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं, आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र होने वाले हैं थ्रू द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब्स. यहाँ से नीचे तक ट्रांसफ़र होंगे, ओवरीज तक जाएंगे. ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर. आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ गो पोलन ग्रेन्स, ये एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, आप देख लेना पूरा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. इमेजिन ऑल सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैपन टू फॉल अंडर द सेम प्लांट एंड स्प्राउट इनटू न्यू प्लांट. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी? पहली बात तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा. एक ही जगह पे सारी प्लांट्स हो जाएंगे तो डिसीजेस भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होंगी. मतलब अब एक ही जगह पे सारी प्लांट्स है तो क्या होगा, एक प्लांट को आपका फॉर एग्जांपल देखो, ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल की बात नहीं है. यहाँ पे बात क्या होती है कि सारे प्लांट्स दे आर आइडेंटिकल.
आइडेंटिकल, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, साइमल्टेनियसली सबको डिसीजेज हो सकती हैं। अब देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विल ग्रो इन अ स्मॉल लिमिटेड स्पेस, तो क्या होगा, वाटर मिनरल्स भी लिमिटेड हो जाएंगे, वो जो सॉइल है ना वो न्यूट्रिएंट फ्री हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, न्यूट्रिएंट फ्री हो जाएगा, मतलब थोड़े बहुत कम न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, तो फिर प्लांट्स उसमें अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे, साथ साथ में कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ फ्लावर, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम टू शो द LS ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ओके, इट इज़ नॉट लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, मैं अभी वो चैप्टर पढ़ रही थी ना मेंस्ट्रुएशन का, तो मेरे मुंह से निकल गया। बेसिकली इट्स द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है, मैं ड्रॉ करूँ क्या, मैं लेट मी ड्रॉ हियर बिसाइड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपके बहुत प्यारे प्यारे पेटल्स आएंगे, एकदम सुंदर सुंदर से, दैट मेक्स द प्लांट लुक रियली अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, पेटल्स के साथ ही तो ब्यूटीफुल दिखता है। बीच में यहाँ पे आपकी ओवरी, ओव्यूल्स, जितनी सारी चीज़ें हैं ना वो आती हैं। आई एम अ वेरी बैड आर्टिस्ट, सो प्लीज़ डू इग्नोर माई ड्राइंग एंड बेयर विद इट इफ़ पॉसिबल देन। और यहाँ पे आपके स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, हम स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर ड्रॉ ही कर रहे हैं अच्छे से, वी ड्रॉइंग इट लाइक वेरी ब्यूटीफुली, आई डोंट नो वेदर इट्स ब्यूटीफुल और नॉट, बट स्टिल वी आर ड्रॉइंग इट। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, देखो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाई है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया था ये आपको लेवल कर देना है। अभी हम लोगों ने लेबल किया तो इसलिए नहीं करेंगे, ये पार्ट्स को लेबल करते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे आते हैं आपके एंथर्स, देन यहाँ पे फिलामेंट्स, ठीक है, माई राइटिंग इज़ वेरी बैड बट स्टिल आई थिंक यू गाइस आर गोइंग टू बेयर विद दिस। यहाँ पे बीच में आपके ओव्यूल्स, ओवरीज जो भी है ना, ओव्यूल्स और फिर ओवरीज आपको मेंशन कर देना। मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग टू हैव दिस पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट आएगा कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का, ठीक है, मैं ड्रॉ करती हूँ, रुको। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ग्रीन पार्ट्स आते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्रीन पार्ट होगा, जिसके थ्रू आपका जो फ्लावर है ना वो रिलीज होता है, मतलब वो वहीं से वो तो फ्लावर निकल रहा होता है यार। ओके, मे बी देयर इज सम इशू हियर, या नाउ दिस इज फाइन। हाँ, तो ये क्या होता है, इसको बोला जाते हैं आपके सेपल। देखो प्लांट की साइज बहुत ज़्यादा हो गई, तो इनको बोले जाते हैं आपके सेपल्स। व्हाट इज हैपनिंग यार, हाँ ये ठीक है। तो गाइस देखो, इनको क्या बोलते हैं, आपके सेपल्स बोलते हैं। अब क्या हो रही है, बीच में आपके ओवरीज हैं, फिर ओव्यूल्स है जो मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो ब्यूटीफुल से है ये आपके पेटल्स होते हैं, ठीक है, पिक पेटल्स होता है। आपका जो स्टिग्मा होता है, आपका जो स्टाइल होता है, आपका जो ओवरी होता है, वो सारे कार्पेल के पार्ट्स है। कार्पेल बोल लो या बोल लो आप उसको पिस्टिल, ठीक है, उसके पार्ट्स होते हैं। अब आपके एंथर्स एंड फाइलेमेंट्स, वो किसके पार्ट्स होते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट आर नन अदर देन योर स्टामेन्स, उसके पार्ट्स होते हैं। अब देखो, अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया हम लोगों ने, ये सारे डिटेल में एक्सप्लेन है, पढ़ लेना, इतना ज़्यादा एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम में या फिर नोटबुक वगैरह में जिसमें भी आप लिख रहे हो, इतना ज़्यादा कौन लिखता है। हाँ, तो गाइस देखो, अब नेक्स्ट क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, माइक्रो प्रोपेगेशन, बायरो फिल्म, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड ग्राफ्टिंग, इन सब पे शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, सॉल्यूशन है, आप ध्यान से देख लो और लिख लेना, और फिर एक्सप्लेन करेंगे। सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ग्राफ्टिंग का भी आप देख लो, बहुत अच्छे से फिगर के थ्रू एक्सप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज यूजफुल टू प्लांट ब्रीडर्स, डिस्कस ब्रीफली, ये है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम्स डिस्क्राइब बाइनरी फिशन एंड बटिंग। सो बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है, एक आपका सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले क्या होगा, वो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि उसके न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होंगे, एक इधर। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे ना उसमें स्पिल्टिंग आएगी, फिर स्पिल्टिंग जब होगी तो एक न्यूक्लियस इधर, और फिर चाकू से वो अपने आप को बीच में से काट लेंगे। चाकू से नहीं काटेंगे, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना बी कटिंग देमसेल्व्स विद नाइफ, बट दे आर गोइंग टू कट देमसेल्व्स। तो एक न्यूक्लियस इसमें आ गया, एक न्यूक्लियस इसमें, तो ये क्या होता है, फिजन, बाइनरी फिजन, बिकॉज दो सेल्स में डिवाइड हुआ। ये किस में हो रहा है, एक बैक्टीरियाज में होता है, आपके अमीबाज में होता है, एक्सेट्रा।
ना आपका बडिंग में क्या हो रहा है, बडिंग में देख लो यहाँ पे ध्यान से, ईस्ट सेल है उसके पास, इसके पास इतनी सारी चीज़ें होती है, फिर ग्लाइकोजन, फैट वैक्यूल, साइटोप्लाज्म वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल एक्सेट्रा। अब ईस्ट में क्या होता है, एक बड निकला, एक बड निकला, अब बड जैसे ही निकला फिर न्यूक्लियस डिवाइड्स, उसके बाद क्या होता है, डॉटर ईस्ट बन करके इधर आई और फिर वो डिटैच हो जाती है, फिर क्या होती है, वो डिटैच हो जाती है, फिर आपका एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये देखो एडिशनल क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि ऑब्वियसली हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बट आप देख लो, आप लोग इन सबको सॉल्व कर सकते हो घर बैठे, या लाइक प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपके इन क्वेश्चन से। सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करने, सारे के सारे इतने सारे नहीं करने होते, यू हैव टू सॉल्व ओनली एंड ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। रेलेवेंट क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने, सारे के सारे नहीं करने हैं, तो रेलेवेंट क्वेश्चंस उनमें से आपको स्पॉट करना है और सॉल्व करना है। मैं आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस कुछ टिक करके दे देती हूँ इन एडिशनल क्वेश्चंस में से जो आप सॉल्व कर लो अपने घर बैठे, एंड दैट इज गोइंग टू बी लिटरली हेल्पफुल फॉर यू गाइज एज वेल। तो देख लो, सबसे पहले ये MCQs ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे एक बार ज़रूर देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे देख लेना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत छोटे से होते हैं और आ भी जाएंगे। अब फाइंड द ऑड वन आउट, ये हो गया। अब देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो इन डिफरेंशिएट वाले जितने भी क्वेश्चन है और डिफाइन वाले क्वेश्चंस, उनको ज़रूर सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट एंड डिफाइन वाले क्वेश्चंस, और साथ साथ में मेंशन द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो ये वाले जो है ना, ये करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है, तो आप कर लेना, लाइक दैट्स टोटली अपॉन यू। अब आंसर द फॉलोइंग के रिप्रोडक्शन नेसेसरी, ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोडक्शन, जो भी बोलो, वेरियस मेथड्स ऑफ, ये वाला भी आएगा एग्जाम में, बहुत अच्छे से ब्लूप्रिंट टाइप का दे, ध्यान से देख लो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया एंड बडिंग इन हाइड्रा, ये भी आ सकता है। और फिर आपका आता है ड्यूरिंग बडिंग इन हाइड्रा, वो हो गया। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से जो क्वेश्चन है, MCQ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर देख लेना उनको, उसको डिटेल में नहीं, एक बार देख लेना ज़रूर चाहिए, पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, ऑड वन आउट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन कर लेना ढंग से, ठीक है। और ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंशिएट वाले ही हैं बेसिकली। देखो फिगर के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन भी है, कर लेना एक बार। डिफाइन वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार ज़रूर कर लेना। एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, इतना भी ये वाला भी एक काम करना, एक बार ज़रा देख लेना इन सबको भी ध्यान से, एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। और आंसर द फॉलोइंग, तो इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे हुए हैं। तो व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये ऑलरेडी हम लोगों ने उसमें करा है, तो आपको इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अभी सॉल्यूशंस जो देखे उसमें इतना करा है, तो ये वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी इतना नहीं वाइडली पूछा हुआ है। लेबल डायग्राम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये भी हम लोगों ने उसमें देख ही लिया, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो जो भी मैंने बोले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ध्यान से एक बार देख लेना। एडिशनल क्वेश्चन में से भी स्क्रीनशॉट ले लो आप एडिशनल क्वेश्चंस का, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे हाजिर है सारे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड दैट्स इट अबाउट द सेशन, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। और या गाइस, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। चल देन, ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू ऑल।